প্রতিটি অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর নিয়ে শুরু করছে আজকে ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাব সরাসরি বিস্তারিত খবর। বুধবার আসানসোল পৌর নিগমের মিটিং হলে কমিশনার নিতিন সিংহানিয়ার নেতৃত্বে এক বিশেষ বৈঠক করা হয়। এদিন এই বৈঠকে মুখ্য রূপে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল, দুর্গাপুর এডিডিএর এবং স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা। এদিন এই বৈঠকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শিল্পাঞ্চলে যেভাবে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে চলেছে তাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং কোভিড-19কে রোধ করবার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে এই বিষয়ে আলোচনা করা। এটা কিন্তু সত্যি কথা বলি আমাদের নীল শাড়ি পরা দিদিমণিদের জায়গায় পৌঁছে নাই, কিন্তু রুরালে যেহেতু মানে ইকোনমিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড, সত্যি কথা বলি সোশিও ইকোনমিক্যাল একদম ঘরের কিন্তু আত্মীয়ের মতো কিন্তু ব্যাপারটা বলে যে আমার এটা হয়েছে, আমার ওটা কিন্তু বলছেন। সালানপুরে থাকে আমাকে বলছি 900-র মতো ফ্ল্যাট আছে স্যার, ওখানে কেউ এন্ট্রি করতে হাউসিং কমপ্লেক্সেস আছে। আমাদের স্যার সুরা থেকে এটা বলা হয়েছে যে ওনাদেরকে ওই ভ্যাকসিনেশনের জন্য না ঠিক আছে, আমরা হাউসিং কমপ্লেক্সেসই আছে। সাপ্রেস করবে কিন্তু যে বলে যে আবার সুগার আছে, প্রেশার আছে। সাপ্রেস না করলে তাহলে আমরা ইনফরমেশন দেব না। আমাদের মেয়ের যাচ্ছে করছে, যদি সাপ্রেস না করে গর্ভবতী পরিস্থিতি না রুরাল বেড থেকে কিন্তু অনেক বেটার রিপোর্ট আছে। এক্সপ্রেশন আমি দিয়েছেন আমাদের ধরুন দুর্গাপুর কর্পোরেশনে অলরেডি 110-এর মতো হাউসিং কমপ্লেক্স আছে। এর মধ্যে আপনাকে একটা ছোট্টই বলছি সালাগুড়ি একটাই ছোট্ট আমাদের মেয়েদের ঘরে ঢুকতে দেয়, সিম্পলি ঢুকতে দেয়। তারপর আপনি অমরাবতী ডিফেন্স কলেজ ঢুকতে দেয়। डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड हेल्थ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से जो भी निर्देश आए हमारे पास उसके तहत 50% अटेंडेंस हो या जो भी और भी कोविड रिलेटेड जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस हैं उसको बहुत सुचारू रूप से फॉलो किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारे जितने भी सफाई कर्मी हैं सभी को सैनिटाइजर्स, मास्क, आपके सोप्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। और कॉर्पोरेशन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि मास्क सभी पहने, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें और अपना बहुत ध्यान रखें। और इसके साथ साथ हमारे स्विमिंग पूल में या फिर स्टेडियम्स में जो भी रिस्ट्रिक्शंस की बात कही गई थी पहले, तो फिर से उसको जो है सुचारू रूप से चालू किया जा रहा है। और हमारी कोविड टास्क फोर्स की एक मीटिंग कल हमारी है, जिसमें बाकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको हम और विस्तार से सब पे देकर इसको एक्टिवेट करेंगे। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্দাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प ले, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। বিরতির পর বুধবার আসানসোল উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত বুধাম পিএনটি ময়দানে সভা করতে আসেন অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন উত্তর বিধানসভার টিএমসি প্রার্থী মলয় ঘটকের সমর্থনে এই নির্বাচনী সভা করা হয়। এই দিন এই সভায় বাঁকুড়ার টিএমসি প্রার্থী সায়ন্তিকা ব্যানার্জি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নের কাজ তুলে ধরেন এবং কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন নীতির আলোচনা করেন এই সভার মাধ্যমে, এবং তিনি উত্তর বিধানসভার প্রার্থী মলয় ঘটকের জন্য আবেদন জানান বিপুল ভোটে জয়ী করবার জন্য। কাছে আমরা জবাব চাইব যে আমাদের নেত্রী যখন শীতলকুচির বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদের সুর তুললেন, তাকে ব্যান করে দেওয়া হলো, অথচ
যে বা যারা বললো এই স্বয়ংতন দোষ এ দোষ, যে হ্যাঁ বাড়াবাড়ি করলে জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে, তাদের বিরুদ্ধে কেন এখনো অব্দি স্টেপ নেওয়া হলো না, এই জবাব নির্বাচন কমিশনকে যায় না। সুতরাং তাদেরকে আমরা যোগ্য জবাব দেব। এবং যেভাবে অত্যাচার তারা বাংলার বুকে এনেছে, তারা বুঝে গেছে তাদের কাছে কোনো উন্নয়ন নেই, তাদের বাংলার মানুষকে কিভাবে মুখটা দাবিয়ে দেওয়া যায়। সুতরাং করি সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তারা আজকে তাদের দারোয়ান রূপে পরিণত করেছে এবং তাদের কথা অনুযায়ী তাদেরকে চালনা করছে। ইলেকশন কমিশন হলো সেই কয়েনের আর একটা রূপ। বৃষ্টির মাটি, একে অপরের হাত ধরে আমরা বড় হয়েছি, একে অপরের কাছে, এবং বাংলাকে তারা চেষ্টা করছে যে বিভক্ত করার, এবং প্রচুর অর্থ নিয়ে আসছে। তারা চেষ্টা করছে মানুষকে কেনার, মানুষের আবেগকে কেনার। কিন্তু তুমি জোগাড় করতে পারোনি। আমি মৃত্যু সঞ্চয় চলে গেছিলাম দিদি স্বাস্থ্য সাথী কার্ড, সেই স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে আমি ভেলোরে গিয়ে অপারেশন করেছি। আজকে তোমার পাশে আমি দাঁড়িয়েছি, সেটা দিদির জন্য দাঁড়িয়েছি। দিদির স্বাস্থ্য সাথী কার্ড না থাকলে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। তাই আজকে আপনাদের সামনে আমাদের রাজ্যে, পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্র জগতে দুই তারকা সায়ন্তিকা এবং সোহম মঞ্চে পৌঁছে গেছে। সায়ন্তিকা এবারে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন, বাঁকুড়া কেন্দ্রে তার ভোট হয়ে গেছে। আমি সায়ন্তিকাকে মাইক তুলে দিচ্ছি তার বক্তব্য রাখার জন্য। আমার অ্যাকাউন্টে দিয়েছিলাম, সেই 10,000 টাকা দিয়ে আমি মোবাইল কিনেছিলাম, আমি পড়াশোনা করেছিলাম, আমি ক্লাস 12 পাস করেছি। দিদির জন্য কংগ্রেসের অত্যন্ত সাধারণ সম্পাদক, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস জীবন, ওনাকে স্বাগত জানান। একবার জোরে হাততালি হবে আসানসোলের মাটিতে। তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে তিনি আজকে মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটকের হয়ে আজকে আগামী 26শে এপ্রিলের জন্য আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। মাননীয় অভিজিৎ ঘটক বক্তব্য রাখছিলেন। আমি আমার বক্তব্যটা সংক্ষিপ্ত করছি। যেটা বলছিলাম যে তার দুই মেয়ে কিন্তু তার সাথ দিল না। তার ছেলেকে যখন জিজ্ঞেস করার জন্য সবাইকে এখানে বলবো, আমার মা বোনেদের, আমার দাদাদের, ভাইদের, যে সবাই মাস্ক পরো। আমাদের সুস্থ থাকতে হবে, কারণ অনেক বড় লড়াইয়ে লড়ছি আমরা। এই লড়াই আমাদের জিততে হবে এবং আমাদের সবার জীবন কিন্তু খুবই মূল্যবান, প্রত্যেকের জীবন মূল্যবান। তাই সবাইকে বলবো সুস্থ থাকবো, তবে গিয়ে এই লড়াইয়ে লড়বো এবং আমরা জিতবো। তাই কথা বলার জন্য আমি মাস্কটা খুঁজছি। আমরা এখান থেকে পাঠাবো, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জাহিদ বলতে রাখবো আপনাদের সামনে আমাদের রাজ্যে, পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্র জগতে দুই তারকা সায়ন্তিকা এবং সোহম মঞ্চে পৌঁছে গেছে। সায়ন্তিকা এবারে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন, বাঁকুড়া কেন্দ্রে তার ভোট হয়ে গেছে। আমি সায়ন্তিকাকে মাইক তুলে দিচ্ছি তার বক্তব্য রাখার। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। দুই কেন্দ্রের প্রার্থীর সমর্থনে রোড শো ও সভা করেন স্মৃতি ইরানি। বুধবার আসানসোল উত্তর ও দক্ষিণ বিজেপির প্রার্থীর সমর্থনে এই রোড শো এর আয়োজন করা হয় এবং একটি সভাও করা হয়। এই সভার মাধ্যমে ক্যাবিনেট মিনিস্টার স্মৃতি ইরানি রাজ্য সরকারের ওপর নানা রকম অভিযোগ তোলে এবং মানুষদের বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করবার জন্য আবেদন জানান। উত্তর বিধানসভা, একদিকে দক্ষিণ বিধানসভা, প্রত্যেকের আওয়াজ পাচ্ছেন। যেখানে যেখানে আমার এই আওয়াজ পৌঁছাচ্ছে, তৃণমূল কংগ্রেসের বন্ধুরা যারা এই আওয়াজ শুনছেন, আমি যে প্রশ্নগুলো করছি এইগুলোর জবাব যদি আপনাদের কাছে থাকে। গণতন্ত্র হত্যাকারী ফ্যাসিস্ট সরকার, যে সরকার বিরোধী কণ্ঠস্বরকে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি দিয়ে, রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে গলা টিপে হত্যা করে, এই সরকারকে এক মুহূর্ত এখানে রাখা যাবে না। ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে আছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে বছরের পর বছর অত্যাচারিত হয়ে, লাঞ্ছিত হয়ে, নিজেদের পরিবারকে বিসর্জন দিয়ে
এই ভারতীয় জনতা পার্টি দলের সঙ্গে রয়েছেন। ভারতীয় পার্টি পতাকা ছোঁয়ার জবাব দেওয়ার একটা সময় চলে এসছে। আপনাদের সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত এসে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে। আর মাত্র বাড়িতে আমরা আগামী 5 বছরে খাবার পরিষ্কার জল করে দিব, বচন দিয়েছে। কৃষ্ণেন্দুদা বলছিলেন স্কুলের অবস্থা খারাপ, বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য কলেজ ভালো নেই। আপনাদেরকে জানাতে এসেছি বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত করার পরে 20,000 কোটি টাকা, কত 20,000 কোটি টাকা নিয়ে বাংলায় প্রত্যেকটা সরকারি স্কুলের উন্নয়নটা করবে। আজকে এই বচন দিতে এসেছি। আমরা সংকল্প নিয়েছি পুরো বাংলায় আগামী 5 বছরে 10,000 কোটি টাকা নিয়ে আমরা বাংলায় নতুন 100 কলেজ করব, বাংলায় 50 নতুন পলিটেকনিক কলেজ করব, বাংলায় যত মেডিকেল আর নার্সিং সিট 2025 অবধি ওই প্রত্যেকটা সিটকে ডাবল করব। কৃষ্ণেন্দুদা তুমি বলছো তো ছেলেদের হাতে কাজ নেই, কাজ কিভাবে পাবে? বড় বড় সামিটটা করছে তুমি বলছো। সামিটে যে লোকরা আসছে ওরাও জানে এখানে শিল্প হতে পারবে না, কেন কি ইনভেস্টমেন্টের আগে দিদি বলছে আমার টাকাটা কোথায়? সত্যি বলছি না? তাই যারা ব্যবসা করতে চায় ওদেরকে আজকে জানাতে এসেছি, আমরা সংকল্প নিয়েছি বাংলায় যুবাদের জন্য আমরা 10,000 স্টার্টআপ করব। প্রত্যেকটা স্টার্টআপের জন্য 25 লাখের লোন আমরা দিব যুবাকে বাংলায়। আর যারা ছোট ছোট ব্যবসা করতে চায় ওই সবাই ব্যবসাদেরকে আমরা 10 লাখ টাকার লোন দিব। কোনো আপনাদেরকে মানে হিন্দিতে বলে না गिरवी रखने की कोई चीज नहीं, 10 লাখ টাকা দিব। কিন্তু দিদি ভাই এই সব করার জন্য আসানসোল দক্ষিণ আর উত্তরে কি করতে হবে? বিজেপি চাই। 26 তারিখে পোলিং বুথে গিয়ে কোন বাটনটা টিপতে হবে? কোন বাটন? দাদা বলছেন দুজনেই 1 নম্বর। দাদা 2 নম্বরই শুধু তৃণমূলের হতে পারে। আজকে আমাদের মহিলারা বসে আছেন, একটি মহিলা কর্মীকে হাত জোড় করে জানাতে এসেছে আপনারা যখন মহিলাদের সঙ্গে কথা বলুন আমাদের 2-3টা সংকল্প ওদেরকে জানান। বিজেপির সরকার বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আর আমরা সংকল্প নিয়েছি সরকার প্রতিষ্ঠিত করার পরে প্রত্যেক গরিব পরিবারের মেয়ে স্কুল থেকে কলেজ নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে।
ফিরে এলাম বিরতির পর। বুধবার ছিল ভয়েলেট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার শেষ দিন। এদিন আসানসোল পৌর নিগম অন্তর্গত 31 নম্বর ওয়ার্ডের এক মহিলা ভোটারের বয়স প্রায় 106। তিনি ভয়েলেট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেন। এদিন এই বৃদ্ধা মহিলাকে ইলেকশন কমিশনের পক্ষ থেকে একটি শাড়ি ও একটি ফুলের বুকে দেওয়া হয়। দাঁড়াবেন মন্ডলদা কোন দৃশ্য তুই প্রাইজ দিছিস কি দিল রে পেয়েছে পেয়েছিল আগেবার না এবার আগে এমএলএ ভোট পাবেন আচ্ছা ভাই আমরা তো আমারও আছি আমরা পেছনে আছে হ্যাঁ ফটোটা তুলে আমাদের বেড়াই দেবে একবার করোনা যা হয়ে গেছে সাইডে ধরো আমাদের আসানসোল উত্তরের সবচেয়ে বয়স্ক ভোটার আমাদেরকে একটু ভিতরে যেতে দিন আপনি তারপরে দিবেন দাদা লাইটটা দিয়ে দিন লাইটটা দিয়ে দেন একবার বুকেটা একটু ধরুন মাসি বাবুকে বলো ফটো তুলতে। তিনটে ভোট আছে আমাদের আসানসোল উত্তর বিধানসভার 263 নম্বর পার্টের নগরবালা ঘর 103 বছর তার বয়স হয়ে গেছেন 106 বছর তোনার বয়স হয়েছেন। উনি ভোট দিলেন, খুব সুস্থভাবে এখনও সুস্থ আছেন। আমাদের ইসিআইকে তরফ থেকে ইলেকশন অফ কমিশনার ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে ওনাকে সম্মানিত করা হয়েছে, কিছু উপহার তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, দিয়ে আমরা সম্মানিত করে ওনার ভোট কালেকশন করে আমরা বাড়ি ফিরছি। এই ওয়ার্ডে আরো কোনো আছে এই ওয়ার্ডে আর কোনো বয়স্ক সিনিয়র অত সিনিয়র নেই, 100 বছরের উপরে কেউ নেই। স্যার আপনার নাম? সুব্রত মণ্ডল। ঠিক। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। মঙ্গলবার রাত্রে টিএমসির রাজ্য সভাপতি শিবদাসান দাসু এক সাংবাদিক বৈঠক করেন। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে তিনি পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি প্রার্থীর ওপর নানান রকমের অভিযোগ তোলেন। তিনি কি কি অভিযোগ তুলেছেন আমরা শুনে নেব। साथ 25 साल का प्रेसिडेंट बोल के चेयर में बैठा, वो क्या बात करेगा? कमदा में बैठ के न्यूज हम कल शाम को देख रहा था, उसका भी हम प्रतिवाद किया। पांडेश्वर के प्रार्थी एक बात बोला था, ये डायरेक्ट हमारा ऊपर में हिट किया था। 3 बार इलेक्शन खड़ा हुआ, एक बार जीतने नहीं सका, वो हमसे क्या बात करेगा? संसदीय राजनीतिक में क्या इलेक्शन खड़ा होगा तब भी नेता? इलेक्शन खड़ा होने से नेता होता है, इलेक्शन नहीं खड़ा होता है तो नेता नहीं होता। तो हम ये जिला में 3 बार हारने के बाद भी हम 11 वर्ष तृणमूल कांग्रेस का जिला प्रेसिडेंट था। बार बोल रहा हूं, हम 7 वर्ष आपको युवा कांग्रेस का जिला प्रेसिडेंट था। कांग्रेस का टाइम में हम 7 वर्ष युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और जिला का चेयरमैन भी था, जिला का कोऑर्डिनेटर भी था, आज राज्य का सेक्रेटरी भी है। और टिकट पार्टी में कौन देता है? पार्टी देता है। एमएलए का टिकट कौन देता है? पार्टी देता है। पार्टी जब टिकट दिया तब आप जनप्रतिनिधि, तो बड़ा कौन है? पार्टी बड़ा है, इसको कुछ जानकारी नहीं। और वो खुद 2006 में जमानत जब्त हुआ था रानीगंज विधानसभा में, वो बात वो भूल गया। अगर 2 बार काउंसिलर हुआ है 2015 और 2009 में, अगर ये 2 बार भी काउंसिलर हुआ है, जिस एरिया से काउंसिलर हुआ आप जाइए, बगल में है, 4 किलोमीटर दूर में है, पता लगाइए, छप्पा वोट में जीत के आया है। अगर एक बार विधानसभा का एमएलए हुआ है वो, तो आपको पहले मेयर हुआ था, गाड़ी में लाल बत्ती था, पीछे 10 सिक्योरिटी मिला था, ये लेके जब पांडेश्वर में गया तो पांडेश्वर का आदमी देख रहा है आसनसोल का मेयर है,
इसको अगर जिताने से वो पांडेश्वर का डेवलपमेंट होगा, इसलिए वो पांडेश्वर से एमएलए हुआ था। उसका बाद क्या देखा हम लोग, 5000 समथिंग वोट में वो एमएलए हुआ जीत के, और 2019 में 6800 वोट में हारने पड़ा। अगर अच्छा काम कर लेता तो वहां का आदमी तो और 20,000 वोट में उसको जिताना चाहिए था। और दूसरा बात मैं ये बोल रहा हूं, जिस एरिया से काउंसिलर होके आया था, जे लास्ट में आपको जो मेयर होके बैठा था 2015 में, वही वार्ड में 2016 में विधानसभा इलेक्शन हुआ था, तापस बनर्जी खड़ा हुआ था, 2400 वोट में हारने पड़ा। वो मेयर था, उसका बाद भी हारने पड़ा जेन्युइन वोट में। 2019 में जेन्युइन वोट में लोकसभा इलेक्शन में आबार वही वार्ड से 2800 वोट में हारने पड़ा। ये क्या बात करेगा? इससे आपको सबूत यही निकलता है, वो चप्पा वोट में जीत के आया था, जेन्युइन वोट में नहीं। और अभी खड़ा हुआ ना हंगार लेके जो ये बात बोला, जो हंगार में जो बात बोला, ये खड़ा हुआ तीसरा लड़ाई लड़ रहा हूं, तीसरा पोजीशन का लड़ाई लड़ रहा हूं पांडेश्वर में, तीसरा पोजीशन का। अगला बार तुम्हें तो काउंसलर 2 महीना बाद और काउंसलर इलेक्शन है, तुम्हारा हिम्मत है तो काउंसलर होके देखा। आज तुम बीजेपी में गया ना, हमको मालूम है ज्यादा दिन तुम बीजेपी में नहीं रहेगा, बीजेपी से भाग के आएगा। अहंकार का बात हटाना चाहिए, किसी को ये बात बोलना नहीं चाहिए आप हमसे क्या बात करेगा। तो पंचायत भी आप जीता नहीं, उसको मालूम है प्रणब मुखर्जी देश का सबसे बड़ा नेता था, प्रेसिडेंट का कुर्सी में बैठ सकता है। 2 बरस से प्रेसिडेंट का कुर्सी मिला था तो वहां से उसको भागने पड़ा। और हम लोग 11, 7, 18 और 18, 7, 25 साल का प्रेसिडेंट बोल के चेयर में बैठा। वो क्या बात करेगा? कमदा में बैठ के नेता बना हो, लाल झंडा का समय तो नेता नहीं बना, वामफ्रंट का समय तो नेता नहीं बना। मेयर होने के बाद लाल बत्ती मिल गया, एमएलए हो गया, तब उसका नाम चल गया। और आप लोग जैसे कुछ रिपोर्टर लोग उसका डैना बैना गुर के डेली उसको हाईलाइट करने के लिए माथा में रखा, भैया 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 करके, और आप लोग में कुछ आदमी को सेटिंग करके वो नेता बन के बैठा हुआ। फिर आगे तो लीजिएगा ना, ठीक है। अब देखिए ना, 2 तारीख के बाद आप ही लोग उसको लात मारेगा, इसलिए को फाइनेंस नहीं करेगा। आप लोग साइड हो जाए, हम लिख के दे रहा हूं, हम आपका सामने ये बात बोलना नहीं चाहिए, तभी हम बोल रहा हूं। आसनसोल का तमाम जनता जानता है, जिला का आदमी जानता है, वो मीडिया को सेटिंग करके राजनीति करता है, सभी जानता है, बीजेपी वाला भी जानता है, हाईलाइट का राजनीति करता है। 2 तारीख के बाद कितना हाईलाइट हो रहा है देख लेगा तो। कान पकड़ के आज तक राजनीति में हम लोगों को कोई निकाला नहीं है। इज्जत का साथ 2019 लोकसभा इलेक्शन हरा था, आधा घंटा का अंदर हम जिला प्रेसिडेंट से रिजाइन किया था, ममदादी को कॉपी दिया था, अरूप विश्वास को कॉपी दिया था, हमारा युवा नेता अभिषेक बनर्जी को हम मैसेज किया था। आधा घंटा नहीं लगा, और ये लोग हारने के बाद भी अपना चेयर पकड़ के रख गया, और ये लोग पार्टी को हराया, और हमको भोगने पड़ा, हमको रिजाइन करने पड़ा। ये लोग क्या बात करेगा? ये लोग कभी संगठन किया है? चमचागिरी में पोस्ट मिला है। अरे देखिए, एक तो बात आप सोचिए ना, पार्टिकुलर নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे।
মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। বুধবার টিএমসি সদস্য মুনির বেগ এক সাংবাদিক বৈঠক করেন। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে তিনি জানান, সংযুক্ত মোর্চা উত্তর বিধানসভার প্রার্থী যে অভিযোগ তুলেছেন মলয় ঘটকের ওপর, সেটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই বিষয়ে তিনি আরো কি বলেছেন আমরা শুনে নেব। उसमें बार बार वो मंत्री जी पे एकदम संगीन आरोप लगा रहा था कि वो एनआरसी का जो मीटिंग चल रहा था उसको तोड़ने का प्रयास और उसको मर्डर कराने का प्रयास। तो उस पर आप लोग एक जो एलिगेशन लगाया, इलेक्शन कमीशन के पास इस तरह का कंप्लेंट कोई की है क्या इस विषय में? हमारा कैंडिडेट किया कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग अच्छी तरीके से मालूम है कि एनआरसी जब चालू हुआ था सबसे पहला उसमें मंच में थे हम, और मंच में जितना भी लॉयर गया था हम ही सब लोग के गए थे। उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं बताया था हमको? आज जो एलिगेशन लगा रहा है मलय घटक 25 लाख दे रहा था, 30 लाख दे रहा था मेरा मर्डर का, तो उस दिन क्यों नहीं बताया हम लोग को? हम लोग को सिर्फ इतना बताया है कि पुलिस हम लोग के साथ जाति करेगा, हमको उठा लेगा। हमको इस भी नहीं बताया था कि उसका केस पेंडिंग है। वो तो चीटिंगबाज है, पक्का चीटिंगबाज है। वो जहाँ गया वहाँ आप निशा में देखिए उसका केस है, आप जमुड़िया में देखिए उसका केस है, आप जाइए मधुपुर देखिए उसका खुदाई हो रहा है, जमुई देखिए 2 केस है, 3 केस है, मर्डर केस भी है। उसका अपना ममेरा फुमेरा भाई को मर्डर कराने में उसका जो पेपर स्टेटमेंट दिया पुलिस को, उसमें एक्सेप्ट किया कि हाँ हम 2 लाख रुपया दिया है। ये क्या लगता है कि इलेक्शन का फायदा उठाने के लिए इस तरह का मामला अभी लाया है क्या नजर में? नहीं, वो फायदा उठाने के लिए ला रहा कि हमको वो अपने आप को हीरो बनना चाह रहा, सिंपैथी लाने चाह रहा। लेकिन सबको जब उसका असलियत पता चल गया आसनसोल का कि उसका और कोई चारा नहीं है, तो और दूसरा खेल खेल रहा। अभी बोल रहा मौलवी घोटे की कराया, फुचू घोटो को कराया। कल मेरा नाम से भी कंप्लेंट किया था। हमने जब सुना शहर में आके बस जाएगा, ये हम नहीं चाहते। वो जहां गया उस जगह को बर्बाद किया। वो तो ठीक है, तो लीगल स्टेप अभी क्या लीजिएगा? लीगल स्टेप लेंगे हम लोग इलेक्शन कमीशन में। हम तो इसका एक चिट्ठी डाला था 2 एपिक नंबर का, उसका 2 वोटर कार्ड के लिए। वो तो बोल रहे गलत है, सिर्फ मेरा एक ही नॉर्थ का वोटर है। हमारे पास प्रूफ है, आप लीजिएगा प्रूफ, दीजिएगा। हाँ आइए, अभी हम दे रहे हैं। एक उन्होंने कहा था, पवन सिंह नामक एक व्यक्ति है जो कि वहाँ पर अपना स्टेटमेंट दिया है मंत्री के विरोध में कि हमको इस तरह मीटिंग किया गया था और ये सब चीज़ भड़काया गया था। वो कोर्ट का नोटिस दिया, बोला ये सिद्दीकी ने मुस्तकीम ने बोला कि ये झूठ हो तो ये हम अपना पॉलिटिक्स से हम संन्यास ले लेंगे यदि कोई इसको झूठ साबित कर दे। ऑर्डर शीट दिखा रहा, ऑर्डर शीट दिखा। सुनिए, वो एक इससे पहले अगर ये जब बात आई तो हम पूरा खोल ले। इससे पहले एक लड़की और उसका प्रेमी अंदर में है, उसका हस्बैंड का मर्डर केस में, उसको तैयार किया था इसने। सारा बात फाइनल होने के बाद जब वकील इनकार कर गया, नहीं ऐसा काम नहीं करेंगे हम, लड़की को मना किया तो लड़की इनकार कर गई, वो औरत इनकार कर गई, वो 302 में जेल में है। उसके बाद इसको राजी करा, उसको चिट्ठा लिख के मुस्तकीम अपना हाथ से दिखाया था कि इसको तुम रटो, और एक चिट्ठी उसको डाल दिया था कि 164 हुआ, नहीं हुआ। और वो चिट्ठा कल तक हमारा पास ये है, हम रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहे। ये है कि उसने बोला है कि फाड़ के फेंक दिया, वो स्टेटमेंट नहीं देने वाला, ये झूठा आदमी है। दिन में 1000 बात करता है, 999 तो झूठ बोलता है। इसका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जो 5 साल से ही कर रहा, सोर्स ऑफ इनकम क्या है उसको बताया हमको। किसी को बोलता है कि मेरा दुबई में खस्सी का मांस हो जाता है, उसका पार्टनर है। किसी को और कुछ बोलता है, किसी को बोलता है मेरा वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, तो उसको पीस कर देगा मुझे का बीजेपी दे रहा, और संयुक्त मोर्चा का भी फंड बीजेपी के दे रहा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुस्तकीम सिद्दीकी बोल रहा कि हमको मौलवी घोटे मराने के लिए 25 लाख दिया,
तो उसको बम मराने के लिए 25 लाख दिया। तो झूठा जो बात बोलता है वो हर टाइम झूठा बोलता है। वो अगर दिन में 1000 बात बोलता है तो उसका 999 बात झूठ है, पक्का झूठा चिटिंगबाज है। इन लोगों का देखिए, हम सारा के सारा बताएं कि ये 14 में शायद गरीब आदमी पार्टी में खड़ा हुआ था। ये बोल रहा है कि हमारा कभी वोटर कार्ड जमुई करनी है। 14 का आप लोग अगर निकालिएगा, हमारा पास है 14 को निकालिएगा तो उसका जमुई का एपिक कार्ड, वोटर के एपिक का नंबर है JCA 0178053। आसनसोल एपिक नंबर है AOG 2679365 355 होगा या 6555 है तो मेरा पास। यहाँ तक कानून मालूम है कि अगर वो सप्रेस नहीं करता कि जमुई का वोटर कार्ड है और आसनसोल का उत्तर का वोटर कार्ड है, तो उसको एक वोटर कार्ड सरेंडर करने होगा और सरकार को बोलने होगा कि हमने ये वोटर कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। तब उसका जमा होने से एपिक कार्ड का नंबर जो है वो एक ही होगा। ये अलग अलग नंबर है। इसके मतलब है कि ये किसी को छुपा के, जमुई वाला छुपा के इसको बनाया था। तो ये तो कानून नहीं है। वो बोल रहा है कि मेरे जमुई में था ही नहीं। आपका पेपर कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमारे जमुई में कोई कार्ड नहीं था, ये साजिश मौलवी घोटो, पूछू घोटो ये सब कर रहे हैं। तो अगर नहीं है तो ये 2 नंबर कहाँ से आया? इनके जवाब अब उनसे बोले। और वो जो चैनल चला रहे, जो चैनल में दे रहे, चैनल के नियम जहाँ तक हमको मालूम है कि हम अगर कोई आपका किसी को लगाए तो आपका फर्ज बनता है कि इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो इससे भी बाइट लेना कि ये बात हो रहा कैसे। लेकिन वो जो चला रहा है, इनका निगाह में उसका एक रिश्तेदार है, वो भी बहुत बड़ा माने सामान है, उसके साथ है, वो भी भागीदारी में, चिटिंगबाजी का पैसा में वो भी साथ लेते हैं, इसलिए उसके साथ है। उनको वो बोल रहे हैं कि हम मिलियन ऑफ मैन को हमने दावत दिया था NRC में। सही अगर बोलिए तो उसको चिंता कौन है? वो मिलियन ऑफ मैन, हम लोग आसनसोल वासी जो थे उसमें लॉयर का सबसे बहुत बड़ा हिस्सेदारी था कि लॉयर हुआ दिल्ली जाते थे। तो लॉयर नहीं जाता, आसनसोल का आवाम नहीं जाता, तो कहाँ से भीड़ जमाता? उसका क्या औकात है? वो जमुई से है, एक मर्डरर है, एक चीटिंगबाज है। वो अभी बोल रहे हैं कि नॉर्थ का हम आसनसोल के वासी का जैसे क्षति नहीं हो इसलिए कर रहे। अरे तुम इतना दिन क्या किया? कहाँ पूछा? किससे पूछा? किसको हेल्प किया? बताओ। तुम बीजेपी का पैसा लेके खाली टिकट माने वोट कटुआ बन के आए हो। दूटो एक तो वो बन के आए। देखिए, मुझ पे दबाव बनाया गया, मुझको लोभ दिया गया, मुझको डराया धमकाया गया कि विड्रॉ कर दो वरना तुम्हारी वजह से मुलय घटक हार जाएगा और बीजेपी जीत जाएगा। मैं कहता हूँ मुलय घटक हट जाएं, मुलय घटक हट जाएं अपने गुंडों के जरिया। उनका गुंडा है, उसका नाम इसलिए नहीं बताऊंगा, गुंडा बड़ा बन जाएगा, समझे? वो छोटा गुंडा है, बड़ा गुंडा बन जाएगा। उनके जो वॉलेंटियर्स हैं कुछ, उसमें से मुनीर बेग जैसा एक बंदा भी है, इसने भी अनाप शनाप सोचिए एक आदमी कैसा होगा। मेरी गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है, मैं फुरफुरे शरीफ जा रहा था, मैंने पोस्ट किया फेसबुक पे कि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, तो वो लिखता है कमेंट्स में, क्या ये आसनसोल का नहीं है, इसका जांच होना चाहिए। ये संवेदना की जगह पे वो उत्तेजित करने का वो खुशी जाहिर करता है। ये बंदा क्या है? इसमें ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। ये घबराया हुआ है हमसे, चूँकि ये लोग छोटा हो चुका है। इसका जो कर ये लोग बड़े बड़े बातें करते थे। रही बात हमको डराने धमकाने की, आज भी मुझ पे प्रेशर है, दबाव है कि चुनाव से पहले तक मैं ये घोषणा कर दूं कि मैं बैठ रहा हूं, हमें कोई चुनाव नहीं दे, मैं ऐसा करने नहीं जा रहा हूं, मैं बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूं और मेरी जीत पक्की है। इसलिए पक्की है कि जिन पर हमें डाउट था, लेफ्ट के वोटर, बिहारी वोटर्स, बंगाली वोटर्स,
आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे, उन्होंने मुझको गोद में बैठा के ऐसा वेलकम किया है, मुझे इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा वो चल रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप चले जाइए, अगर आपको जानना हो तो देख लीजिए, गिरमिट की तरफ चले जाइए, यहीं पे क्या बोलते हैं धुर्प डंगाल चले जाइए, आप कहीं पे चले जाइए, हर तरफ CPM जो है, आप चले जाइए। उधर के कांग्रेस के कुछ नौजवान है, रेल पार में पैर टूटा हुआ है, कैसे मुस्तफ़ा का वो प्रचार कर रहा है, हमारा 5 रुपया नहीं ले रहा, प्रचार कर रहा है। उसको एक जोश है, जुनून है, जो जान रहा है कि जो लिखा है BJP वाला कि घटक विदाई, समझे, बस वो जान रहा है कि कौन आ रहा है। BJP कहती है कि कार्ड से वोट कास्ट करेगा, मेरा एक ही वोटर है, लिस्ट में नाम है, और ये गुमराह करने वाले लोग हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत का ये चर्चा में बना रहना चाहते हैं, बिना सबूत का, बिना कुछ किए हुए। और इनको तकलीफ़ ये है कि ISF ने इसको वोट नहीं दिया, जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ। इनके पास तो कोई दिशा ही नहीं है, दिशाहीन लोग हैं, इनके पास अपना कोई वैचारिक मुद्दा नहीं है, आइडियोलॉजिकल पर्सन नहीं है, ये बिना पेंदी का लोटा है, जिधर मिलेगा पैसा उधर चले जाएंगे। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস্ট্রি নিউজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।